All right. So in the previous lecture, we were discussing about fine tuning of LLMs. What we do in fine tuning that I explained, how many types of fine tuning is there, that too I have explained. And we want to follow up this concept with some coding, that how can we perform fine tuning. Okay. So, as you can see, that we do have story about LLMs and artificial intelligence is now having LLMs as a priority. Therefore, we are using these LLMs for various tasks. However, we do have specific tasks, and we want these specific tasks to be solved by LLMs. In that regards only my previous lecture went. We can fine tune few layers of LLM, what we call as an outer layers, because the task which you are seeing is, if not so much complicated, or the outcome which you want to achieve, for example, sentiment analysis. For that, I don't want to fine tune the entire model. It's better you can fine tune the outer layers few weights and you can get the result. Okay. Supervised, we are talking about supervised learning. Okay. So we do have pre-trained language models. Okay, LLMs are pre-trained language models, and working of transformer architecture is very clear to us. How transformer do work, how it produce the output, we have seen everything. So pre-trained language models like GPT, they are trained on huge amount of data. Here unsupervised learning is being performed. Okay. And this LLMs after training, they can produce the output in natural language only. So they do take the data in natural language, they produce the output in natural language only. Okay. And the most important part in these models are they are not only good at understanding, but they are also good in generating human like text. That's what we are seeing. And in fine tuning, this is a process. We are going to use the pre-trained model and we further train it for our task. We do have a data set. We have labeled data set. Okay, that's what I am calling as supervised training. Okay, so the fine tuning process can be considered here. We can train a pre-trained model, retrain pre-trained model for our specific task, and it should be like low computation expenses should have to be used. Okay. So the transformer, the architecture, it grant access to an extensive collection of pre-trained models suited for various tasks. Fine tuning of these models can improve the model ability to perform specific tasks. That's what I call as a downstream task,
and you are having like sentiment analysis, question answering, document summarization. Okay, and we believe because machine learning models can also perform sentiment analysis. Deep learning models can also perform sentiment analysis. But right now, we are trying to use the capability of a Gen AI model, that is LLM, and we believe because they are having a knowledge. Okay, they are trained on large corpus of data. You do have a task. Okay, so you can fine tune that LLM for your specific task. The the concerns will be like as we have discussed yesterday also, at the moment before fine tuning, LLM can do multiple tasks. If you have only a single task to perform for fine tuning, in that particular case your LLM, what it know, that will be ignored, and now your LLM will be used to perform your task, let us suppose sentiment analysis. So capability of LLM will be reduced, but however you are enhancing its potential to perform sentiment analysis. Okay, fine. For that purpose you are using. So then don't think that okay, this same LLM can be used for other tasks and it will give the proper result. So see, the point is model, what we know is layered architecture. It's an architecture, that's it. Architecture that is having like components, layers, and it do have neurons, weight, and the training means adjustments of weight only. That's what we call as a neural network. Now if you change the weights for a specific task, then it will do this thing. Okay, here is the diagram for it: LLM, fine tuning, final model. Okay, so there are different types of fine tuning. I already told you in the previous class. Supervised fine tuning, you are having a data, labeled data, so you can train your model with that particular data. Okay, we are having now. See, we can do prompting also. Okay, what it is? Few shot. Some of the cases where collecting a large label data is impractical. So few shot learning tries to address this by providing a few examples. Okay, short means example. So I already told you prompting is also like we are making LLM to generate an answer according to our need. So in zero shot, you are not giving an example. Okay, you are having zero shot, one shot, few shot. All these are different types of prompting. Zero shot, okay, no example. You just gave a query to LLM. Understand? You are learning LLMs. You may be asked about okay, how many types of prompting are there? Okay, fine. So in that particular case you should be knowing, if someone asks you what is zero shot. See, zero shot is a general prompt you give to the LLM. There is no example, you just put a query. One shot means okay, again it's a prompt, again it's a query given to the LLM, but you gave an example. आप उसको बोल रहे हो देख भाई मेरे को इस तरीके का आंसर बना के दे, तो आप एग्जाम्पल दे रहे हो, तो ये वन शॉट है। वन दैट मीन्स वन एग्जाम्पल आपने दिया। फ्यू शॉट में ऐसा है कि आप उसको कई एग्जाम्पल दे रहे हो, मल्टीपल एग्जाम्पल्स। ओके, इन अ क्वेरी यू आर गिविंग मल्टीपल एग्जाम्पल्स, यानी सीधी सीधी बात है, आप एलएलएम को समझाने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे को आंसर कैसा चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द एलएलएम। तो ये भी एक प्रकार की वो कह रहे हैं ट्यून करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई तू जानता तो सब कुछ है, लेकिन तेरे सारी चीज़ें जानने से मेरे को क्या मतलब है यार। द वर्क विच आई रिक्वायर फ्रॉम यू ना, वो मेरे को दे।
ठीक है, तो ये हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट। ट्रांसफर लर्निंग ये मैं बता चुका हूँ आपको। एंड वी आर यूजिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ प्री ट्रेन मॉडल। हम उससे कह रहे हैं कि भाई तू अपना वेट जो है वो दे दे, हमें ट्रेंड वेट्स हैं आपके पास वो आप हमें दे दो। ठीक है, सो दिस कैटेगरी स्पेसिफिकली एम टू अलाउ मॉडल टू परफॉर्म अ टास्क डिफरेंट फ्रॉम द टास्क इट इज इनिशियली ट्रेन्ड ऑन। ठीक है, तो ट्रांसफर लर्निंग का हम यूज़ कर रहे हैं। फ्यू लेयर्स जो हैं यहाँ पर उसको वेट एडजस्टमेंट करेंगे। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। डोमेन स्पेसिफिक फाइन ट्यूनिंग। Okay, that means this type of fine tuning is used to adapt the model to understand and generate text specific for a particular domain or industry. आपको मेडिकल के लिए करना है तो मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए करना है तो एजुकेशन के लिए आप कर सकते हो। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइन ट्यूनिंग है आपके मॉडल की जो ज़्यादातर यूज़ होती है। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप गाइड में आपको यहाँ पर कोड के रेस्पेक्ट में आई विल एक्सप्लेन। जैसे GPT-2 ले रखा है, एंड वन ऑफ माय प्रोजेक्ट आई डिड, आई यूज GPT-2 फाइन ट्यूनिंग ऑल्सो। और अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट था ये, जहाँ पर जो मैंने टास्क करा था वो ये था कि चेस्ट एक्सरे लिया था। आई आई थिंक देवेश नो अबाउट दिस प्रोजेक्ट, उसने अटेंड करा है। चेस्ट एक्सरे जो है इमेजेस था, इमेजेस को जनरेट करा था। ओके, आई डिड जनरेटेड द इमेजेस यूजिंग जैन्स। और उसके बाद इसका ट्रांसक्रिप्ट ऑल्सो आई क्रिएटेड ट्रांसक्रिप्ट। दैट मीन्स इमेजेस टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करा था, एंड दिस टेक्स्ट इज गिवन टू द GPT-2 फॉर फाइन ट्यूनिंग, ताकि हमें क्वेरी पर वो सजेशन दे। मॉडल सजेस्ट कि दिस इज द प्रॉब्लम एंड दिस काइंड ऑफ मेडिसिन यू कैन टेक। ये पूरा प्रोजेक्ट था, फाइन ट्यूनिंग GPT-2 की करी है। तो यहाँ पर भी वैसा ही है। एंड दे टोल्ड कि GPT-2 आप हगिंग फेस जो आपका वेबसाइट है वहाँ पर ये अवेलेबल है। ओके, सो यू कैन फाइन ट्यून GPT-2 मॉडल। यू कैन टेक दिस GPT-2 फ्रॉम द हगिंग फेस। आप ले लीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये हगिंग फेस आपकी वेबसाइट है। you can check out on the Google also, आप you can put it there Hugging Face and you will get it, मिल जाएगा आपको। एंड वहाँ पर GPT-2 आप सर्च कर लीजिएगा, you will get it। ओके, here is the GPT-2। ओके, ये मिल गया। then what you have to do is you have to select OpenAI's GPT-2। ऑलरेडी यहाँ पर एक बेसिक कोड भी होगा। when you will check ना, you will get a basic code of GPT-2 also। So this GPT-2 obviously it's a model and it's present in transformer। Okay, so you have to install the transformer, and once you install the transformer you can import the transformer and you can load the GPT-2 model। That's what you can do, load कर सकते हो आप इसे। ठीक है, एंड अभी मुझे नहीं लग रहा शायद GPT-2 में की वी की ज़रूरत पड़ेगी। 3.5 में तो लगेगी, ओपन ए से 3.5 एंड हायर वर्जन में यू आर गोइंग टू हैव आस फॉर द की। 2 में मुझे नहीं लग रहा अभी कि की ज़रूरत पड़ेगी। आई थिंक क्योंकि मुझे पहले हम यूज़ ऑलरेडी कर चुके हैं, वहाँ की नहीं लगा था। तो इट्स प्रेजेंट इन ट्रांसफार्मर, यू कैन इंस्टॉल द ट्रांसफार्मर, यू कैन इंपोर्ट द ट्रांसफार्मर, यू कैन लोड दिस GPT-2 मॉडल, बेसिक मॉडल। एंड देन फिर आप अपना डेटा भी लोड कर लीजिए। दैट्स व्हाट यू कैन डू फ्रॉम डेटा सेट, लोड डेटा सेट। एंड यू आर हैविंग ट्विटर ट्वीट सेंटीमेंट, ये आपके पास ऑलरेडी लोड डेटा सेट में है। ओके, सो यू हैव टू import data set also, import data set, and from data set you can load the data set। Okay, and once you load the data set you can make a data frame of this data set। ये आप काम कर सकते हैं। और यहाँ सेंटीमेंट का डेटा है, सो यू आर हैविंग पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। ओके, दीज थ्री थिंग्स यू आर हैविंग, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, ये है आपके पास। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है। फाइन, ठीक है, मॉडल ले लिया, डेटा लोड कर दिया, दिस इज द डेटा, आईडी, टेक्स्ट, लेबल,
दैट्स व्हाट वी आर हैविंग। अब टोकनाइजर देखिए, ये बोल रहे थे ना टोकनाइजर। अच्छा, बर्ट कर चुके हैं। बर्ट का आई ऑलरेडी शोन यू द कोड। तो आपको ये पता है वहां पर टोकनाइजर ही लेना पड़ा था इनिशियली। ओके। एंड टोकनाइजर में वी डिड tokens, create tokens of the text. Piecewise tokens also are there. That too I explained in the BERT. Fine. तो वो BERT का था जहाँ पर GPT यूज कर रहे हैं। तो फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर इंपोर्ट GPT टू टोकनाइजर। इसका टोकनाइजर लो। आपका जो डेटा है ये देखिए, वो आप लोड करिए। GPT-2 टोकनाइजर में प्री ट्रेंड GPT-2 जो है वो लीजिए आप। एंड फिर आप जो है, here you have to take the tokens tokenizer dot pad underscore token equal to tokenizer dot eos token, and you have to give your text to the GPT tokenizer for performing tokenization। ठीक है, पैडिंग करना है, ट्रंकेशन यदि ज़्यादा हो गया तो करना है, एंड दैट्स इट। अच्छा, ये कोई इट्स नॉट न्यू फॉर यू, you very well know about these things। You are available with the text। Okay, you have to tokenize the text, एंड आफ्टर टोकनाइजिंग हर एक जो आपके पास देखेंगे, ये जीरो है। ओके, जीरो इंडेक्स। दिस इज व्हाट टेक्स्ट आई एम हैविंग। तो इसके टोकन्स बनेंगे। दिस इज योर रो नंबर वन। वी डू क्रिएट द टोकन्स। ओके, इसके भी टोकन्स बनेंगे। तो यहाँ पर टोकन क्रिएट करने के बाद इट इज सेइंग कि ये एंड ऑफ सीक्वेंस है ये टोकन। तो आपको ये जानते हो कि एक स्टार्ट होता है टोकन, बीच में आपके खुद के टोकन होते हैं सेंटेंस के, और एक एंड होता है ना। दैट्स व्हाट वी आर हैविंग। बर्ट के अंदर आपने CLS लगाया था, है ना, CLS लगाया था, एंड SEP लगाया था। तो ये आप यदि मुझसे पूछे सर ये इतनी बीच की चीज़, तो ये वही है। वो अपनी तरफ से भी तो टोकन ऐड करेगा और बाकी आपकी चीज़ों को टोकनाइज करेगा, और वो यहाँ पता भी कर रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ। So for example, we do have some sentences of length 5, some of length 7, some of length 10. Let us suppose this is the maximum length। तो जो इनकम्प्लीट हैं उनके पीछे उसको पैडिंग करना पड़ेगी। अब प्री पैडिंग भी हो सकती है, पोस्ट पैडिंग भी हो सकती है। ओके, कोई भी परफॉर्म कर सकते हैं अपन। ठीक है, एंड दैट्स व्हाट वी हैव सीन इन LSTM ऑल्सो। बताया था मैंने आपको। ठीक है, प्री पैडिंग हमने परफॉर्म करी थी ताकि सीक्वेंस को बराबर बनाना है, टू मेक द सीक्वेंस सेम। ओके, तो वो कर रहे हैं यहाँ पर, पैडिंग कर रहा है, मैक्सिमम लेंथ जो है उसके करस्पॉन्डिंग पैडिंग कर रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, कुछ प्री प्रोसेसिंग बोल दी उसने। ठीक है, कि आप शफल कर दो डेटा को, और 1000 का ट्रेनिंग और वैल्यूएशन डेटा आप ले लो। ठीक है, शफल भी कर दो, मॉडल को इनिशियलाइज कर दो। मॉडल आप कौन सा ले रहे हो, सीक्वेंस क्लासिफिकेशन। तो भाई सीधी सी बात है, बर्ड भी तो सीक्वेंस क्लासिफिकेशन लिया था। वी ऑल्सो टुक ना बर्ड फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन। हियर ऑल्सो GPT-2 सीक्वेंस क्लासिफिकेशन एंड प्री ट्रेन मॉडल ना वी आर टेकिंग GPT-2 प्री ट्रेन मॉडल। वी आर टेकिंग नंबर ऑफ लेबल्स 3, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। ठीक है, तो सीक्वेंस क्लासिफिकेशन करना है आपको। यू आर कंसिडरिंग टेक्स्ट एज अ सीक्वेंस, और उसमें लेबल हैं, एंड सेंटिमेंट एनालिसिस का काम करना है। तो भाई इस तरीके से आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ले लो, बहुत छोटा है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट टेक्निक नहीं हो गई कि फाइन ट्यूनिंग में तुम्हें कुछ परेशान होना है, कुछ नहीं। तो ठीक है, यू आर टेकिंग योर GPT-2 मॉडल, दिस इज योर मॉडल।
Okay, you're taking sequence classification model pre-trained GPT-2, 3 labels are there. और फिर आपको इवेलुएट करना है यदि मॉडल को, तो एक्यूरेसी देख लेंगे अपन। क्लासिफिकेशन कर रहे हो ना, तो एक्यूरेसी तो होगी। ओके, वी हैव टू चेक द एक्यूरेसी। तो यहाँ पर उसी के हिसाब से ही है, ये इवेल्युएशन है फॉर क्लासिफिकेशन मॉडल। ओके, सो print the accuracy, and then you can compute your whatever be the value of logits you got. So labels आपके ओरिजिनल हैं, लॉजिट्स आपको मिले हैं, ठीक है। एंड देन ये जो लॉजिट्स है, आर्ग मैक्स यानी आपको ऐसे बनता है वो, ठीक है, ऐसे बनता है। तो आर्ग मैक्स का मतलब ये है कि 0 0 0 1 1 0, तो which is having the highest numbers. 0 is more in number. So that's what it said, arg max. So maximum is 0, तो प्रिडिक्शन में आंसर आ जाएगा 0, नहीं तो आता 1। ये बेसिक कोड है, दिस इज द बेसिक कोड विच वी यूज फॉर क्लासिफिकेशन, करते ही हैं। तो रेफरेंसेस लेबल्स हो गए, प्रिडिक्शंस प्रिडिक्शंस है। लेबल्स एक्चुअल थे, ये रियल है, और ये प्रिडिक्टेड है। तो इन दोनों के बीच में ही तो मुझे क्या करना है, रियल और प्रिडिक्शन के बीच में तो चेक करना है कि प्रिडिक्शन 0 है, रियल 0 है, प्रिडिक्शन 1 है, रियल 1 है। प्रिडिक्शन 0 है, रियल 1 है, तो ये मिस क्लासिफिकेशन है, दिस इज मिस क्लासिफिकेशन। तो ऑब्वियसली अभी आप एक्यूरेसी निकाल लो, आप इसके आगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी निकाल सकते हो, कोई इशू थोड़ी नहीं। अभी आपका जो केस है वो मल्टी क्लासिफिकेशन है, यू आर हैविंग 3 क्लासेस, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, तो मल्टी क्लासिफिकेशन का केस है ये। ओके, तभी यहाँ पर लॉजिट्स और आर्गमैक्स लिया है, नहीं तो कोड में चेंज होता थोड़ा सा। वो प्रिडिक्शन निकालता और बोलता प्रिडिक्शन यदि 0.5 से 0, 0.5 से ग्रेटर देन है तो 1, और लेस देन है तो 0। कोड में ये चेंज आ जाता। यहाँ पर आर्गमैक्स लेना पड़ता है, क्योंकि सॉर्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन का यूज होता है व्हेन यू आर हैविंग मल्टी क्लासिफिकेशन। तो उस तरीके से हम लेकर चल रहे हैं कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उस हिसाब से। और ये कोड है आपका ट्रेनिंग का, दिस इज द ट्रेनर कोड, जो कि पाईटॉर्च के हेल्प से लिया है हमने। ये पाईटॉर्च से ही हो रहा है पूरा काम। सो फाइन ट्यूनिंग यूजिंग द ट्रेनर मेथड, तो वी डू हैव अ ट्रेनर मेथड। In case of TensorFlow, we use model.fit. In case of PyTorch, we are using trainer. तो from transformers import training arguments and the trainer, और ये आर्ग्यूमेंट्स हैं जो ट्रेनिंग के दौरान आप दोगे। आउटपुट डायरेक्टरी, भाई कहाँ पर रिजल्ट सेव करना है, यहाँ पर कितने ईपोज हैं पर डिवाइस ट्रेन बैच 1, रिड्यूस द बैच, ये बैच साइज है, ये रिड्यूस फॉर इवैल्यूएशन बैच साइज, इवैल्यूएशन की बैच साइज है। ग्रेडियंट एक्यूमुलेशन स्टेप्स, क्योंकि ग्रेडियंट कैलकुलेट होंगे तो कितने स्टेप्स के बाद ग्रेडियंट्स को सेव करना है, 1 2 3 4, 4 स्टेप्स के बाद ग्रेडियंट को सेव करो, 1 2 3 4 ग्रेडियंट को सेव करो। ओके, तो कह रहा है कि 4 स्टेप्स के बाद ग्रेडियंट को सेव कर लो, तो बैच साइज आपको मिनिमम रखना है। ओके, ट्रेनिंग का, इवैल्यूएशन का, नंबर ऑफ इटरेशंस कितने करने हैं, ग्रेडियंट कब एक्यूमुलेट करने हैं, उसकी वैल्यू लिखना है, बस दैट्स इट। यहाँ पर ट्रेनर जो है वो आप मॉडल दे दो, गिव योर मॉडल, दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स, ट्रेनिंग डेटा, इवैल्यूएशन डेटा, कंप्यूटेशन मैट्रिक्स, दैट्स इट, ट्रेनर डॉट ट्रेन। तो ये जो कोड अभी आपको मैंने बताया, सेम कोड का फॉलो अप लूंगा मैं। Okay, I'm going to use the same code with Llama. Okay, I'm going to perform
द फाइन ट्यूनिंग ऑफ लामा मॉडल। यहाँ जीपीटी है, GPT-2 है। तो GPT-2 के साथ अभी हमें इतना स्ट्रगल नहीं करना, बिकॉज वो ट्रांसफॉर्मर में आपको की आई थिंक ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप फाइन ट्यून कर लोगे उसे। ओके, यू कैन फाइन ट्यून ईजिली जीपीटी फॉर योर टास्क। सेंटीमेंट एनालिसिस करना है ना, कर लेंगे, कोई इशू नहीं। ओके, लामा जो है मेटा का मॉडल है, एंड उसका आर्किटेक्चर में चेंज है। ओके, तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं, अच्छा आर्किटेक्चर इन्हें उसमें यहाँ पर PEFT, पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग लगी है। तो हम ये पढ़ेंगे वहाँ पर क्या होता है, कई और बातें हैं, ठीक है, कि ट्रेनिंग कैसे परफॉर्म हो रही है। अभी बेसिक लेवल पर आपको मुझे कोड बताना था, आई नीड टू शो यू द कोड कि ट्रेनिंग होती कैसे, फाइन ट्यूनिंग में क्या करना पड़ता है। तो आपने हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ है नहीं, you took your data, you have loaded your model GPT-2 टोकनाइजर, टेक्स्ट को देखे टोकन कर लिए, सीक्वेंस लेंथ इक्वल कर ली, बस ठीक है। आपने इवैल्यूएशन करने के लिए मैट्रिक्स जो है वो एक्यूरेसी निकालेंगे हम अपने मॉडल की, वो भी फिट कर लिया, बस यहाँ पर ट्रेनिंग परफॉर्म कर ली। तो जितने भी आपको ईपोस कर, अब जैसे सेंटीमेंट का डेटा है, कुछ थाउजेंड्स ऑफ यू आर हैविंग द रोज, तो 2 या 3 ईपो मैक्स है मेरे हिसाब से। ओके, 3 ईपोज आर मैक्स, इतना कर सकते हो आप, ठीक है, बस बात खत्म हुई। अब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, आप इवैल आप इवेल्युएट भी कर सकते हो ट्रेनर को, कुछ नहीं करना, ट्रेनर डॉट इवेल्युएट कॉल कर लेना। व्हेन यू कॉल दिस थिंग ना, ट्रेनर डॉट इवेल्युएट, तो वो आपको रिजल्ट दे देगा, ठीक है, एक्यूरेसी दे देगा वो कितनी है, ठीक है। यू कैन कॉल ट्रेनर डॉट इवेल्युएट, तो ट्रेनर ट्रेनिंग करने के लिए आपको हेल्प कर देगा पूरा। पाइटॉर्च में यही होता है कोड, ठीक है। एंड नाउ फ्यू थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है फाइन ट्यूनिंग के, डेटा क्वालिटी एंड क्वांटिटी। एक सीधी सी बात है, ये शब्द आपने कंप्यूटर साइंस में खूब सुना होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट, सीधी सी बात। इफ यू आर नॉट गिविंग अ प्रॉपर डेटा, देन डोंट एक्सपेक्ट कि वो अपने आप में इंटेलिजेंट है और अच्छा रिजल्ट दे देगा, नहीं। इफ यू आर गिविंग अ गार्बेज डेटा, यू आर गिविंग गेटिंग द गार्बेज डेटा, ये हिसाब है। हाइपर पैरामीटर भाई ध्यान रखना, कौन से कैसे क्या लेना है, बैच साइज कितना लेना है, ठीक, ग्रेडियंट कब एक्यूमुलेट करने हैं, कितने स्टेप्स पर करने हैं, यहाँ पर दिक्कत आती है। कई बार क्या होता है, वो मेमोरी कंसर्न्स होते हैं, मेरे साथ हुआ है, कीगल पर भी कोई ऐसा आसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि हैवी मॉडल है ये, और आप बोलो कि फाइन ट्यून करो, ध्यान रखना अपना डेटा का साइज, अपने खुद का डेटा का साइज, हाउ मेनी बैचेस इट रिक्वायर, हाउ मेनी बैच साइज इट शुड हैव, एंड फिर हम उसको कैसे कर पाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो प्रिसाइज एडजस्टमेंट्स आर की टू इंश्योर द मॉडल लर्न एफिशिएंटली, अडॉप्ट्स वेल टू अनसीन डेटा, अवॉइडिंग द पिटफॉल ऑफ ओवरफिटिंग, है ना, ओवरफिटिंग वगैरह नहीं होना। तो ध्यान रखना लर्निंग रेट कितना लेना है, ऑप्टिमाइजर कौन सा लेना है। वैसे इन जनरल एडम डब्ल्यू लेते हैं, एडम डब्ल्यू, ठीक है, एडम का ही ये एडवांस्ड है, एडम वेट डब्ल्यू। तो एडम डब्ल्यू, बैच साइज कितने लेनी है, नंबर ऑफ ईपोस कितने लेने हैं, तो बहुत छोटी सी बात बोली उसमें, कई और पैरामीटर होते हैं, ध्यान रखना है। रेगुलर इवैल्यूएशन करना है फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द मॉडल। ओवर फिटिंग से भाई बच के रहना, ठीक है, अंडर फिटिंग से भी बच के रहना। ये तो दो ऐसे लफड़े हैं, ये हमेशा आएंगे ही आएंगे। ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग मशीन लर्निंग में तो ये साथ साथ चलने, और ऐसा नहीं है कि सर अरे वो तो बहुत ही अच्छा मॉडल है, LLM है, तो हम इफ़ यू डू ट्रेन अवर LLM विद डाउनस्ट्रीम टास्क, तो सर वो तो बहुत नॉलेजेबल था, अब सेंटीमेंट एंटीमेंट तो यूं निपटा देगा, सर वो कहाँ लगे हो भाई। देखो, हो सकता है एक बार आपको मशीन लर्निंग में 99% एक्यूरेसी दे दे, मैं पहले भी बोल चुका हूँ,
बट मैंने एलएलएम से यदि 3 पोस्ट से चला रहा हूँ तो भी आपको 80% एक्यूरेसी मिल जाए, इसी में खुश हो जाना। ये क्या है कि हैवी मॉडल है और फ्यू लेयर्स आप उसको बोल रहे हो, नॉट द एंटायर, फ्यू लेयर्स आप बोल रहे हो उसको ट्रेन करने के लिए। ठीक है, इसके लिए हम अपने कोड के अंदर क्या करने वाले हैं वो देखेंगे, अभी यहाँ कुछ बोला नहीं। जीपीटी मॉडल, जीपीटी 2 भी जो है वो भी बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पर ट्रेंड मॉडल है, छोटा मोटा नहीं है वो जीपीटी 2। बर्ड भी नहीं था, वो तो मिलियंस और बिलियंस पे ही सब हो रहे हैं। नन ऑफ द मॉडल इज स्मॉल, सब बड़े मॉडल है। उसके बावजूद भी ये एक्सपेक्ट मत कर लेना कि कुछ ज़्यादा आपको मिल जाएगा। 2 to 3 इटीरेशन तक यदि इतना आ रहा है ठीक है, ओके। क्योंकि इसके 99% एमएल के 99% पे मेरे को भरोसा नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। इसके 80% पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी इसने यहाँ पर गिरा दिया आपको। मॉडल ओवरफिट भी कर सकता है, अंडरफिट भी कर सकता है। ऊपर से कैस्ट्रोफिक फॉरगेटिंग, यानी कि यदि आपने फाइन ट्यूनिंग करी पर्टिकुलर टास्क की तो वो ओरिजिनल काम भूल जाएगा। कैस्ट्रोफिक फॉरगेटिंग है ना, ये भी आपको पता है। इन लास्ट क्लास ऑल्सो आई एक्सप्लेन कैस्ट्रोफिक। यू हैव ट्रेन योर मॉडल फॉर सम टास्क, फाइन ट्यूनिंग कर ली तो वो अपना ओरिजिनल काम भूल जाएगा। और इसके लिए फिर मैंने ये भी बताया था, मल्टीटास्क ट्रेनिंग कर लो। आपके डेटा में ज़रूरी नहीं सिर्फ सेंटीमेंट रखो, कोड भी रख लो, समरी भी रख लो, क्वेश्चन आंसर भी रख लो, मल्टीपल टास्क करो। वो तो फिर थोड़ा सा अच्छी बात है, फिर वो भूलेगा नहीं, वो ये काम भी कर सकता है। मल्टीटास्क ऐसा कर लो। डेटा लीकेज के भी इश्यूज हैं। मेक श्योर दैट ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन डेटा सेट आर सेपरेट, सेपरेट होना चाहिए। पता चला कि भाई ये ट्रेनिंग है, तुमने इसी में से वैलिडेशन उठा लिया, और बाद में क्या होता है, उठाया, बाद में क्या होता है, वैलिडेशन फिर उठा कर देता है, यहाँ पर वापस कर देता है और यहीं से फिर दूसरा उठा लेता है, तो डेटा लीक हो रहा। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग वो स्कोर अच्छा देगा, बट ड्यूरिंग टेस्टिंग फेल हो जाएगा। ये तो कोई नई बात नहीं है, नॉट एट ऑल न्यू, ये पता ही है, मशीन लर्निंग में सीखते हैं। दैट्स व्हाट वी लर्न इन एमएल। Okay, so I have already talked about the data leakage. All right. So ये आपकी फाइन ट्यूनिंग, वो कोड भी बता दिया मैंने। बाकी रैग और फाइन ट्यूनिंग में क्या अंतर है, तो भाई रैग के बारे में कल डिस्कशन हुआ था। रैग कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ रिट्रीवल बेस्ड मॉडल्स एंड जनरेटिव मॉडल। Retrieval based models and generative models. In RAG, a retriever component searches a large database or knowledge base to find relevant information based on query input. तो यार भाई एलएलएम में भी तो यही कर रहे थे, क्या एलएलएम में ये नहीं करा? एलएलएम में वो अटेंशन मैकेनिज्म क्या कर रहा? अटेंशन मैकेनिज्म में भी तो क्वेरी क्यू के वी का ही फंडा था, यही तो था। अब तुम कौन सा नया फंडा सुझा रहे हो? आप कह रहे हो कि रैग में रिट्रीवर होता है जो इतने बड़े नॉलेज में से इंफॉर्मेशन निकाल के लाता है। ठीक है भाई, हमारे पास एलएलएम भी नॉलेजेबल है, उसको भी इंफॉर्मेशन निकाल के तो लानी है, हम भी क्वेरी कर रहे हैं। द रिट्रीव्ड इंफॉर्मेशन इज देन यूज्ड बाय द जनरेटिव मॉडल टू प्रोड्यूस मोर एक्यूरेट। अरे कल वाला फंडा है ये, सीधा सीधा कल वाला फंडा जो समझा चुका था वही है। तुम तो क्वेरी करो, क्वेरी जाएगी वेब पे, ठीक है। वेब बहुत, वेब तो ओशियन है, ओशियन से ये कुछ रिजल्ट निकाल के लाएगा। ये रिजल्ट अभी तुमको नहीं देगा वो। जब एलएलएम्स नहीं थे तब तुम यही काम करते थे। ओके, वी डोंट हैव एनीथिंग, गूगल ही था हमारे पास। कोई भी समस्या है भाई गूगल कर ले। अब उन्होंने कहा नॉलेज बेस, वी डू हैव अ नॉलेज बेस। अभी वेब, उसने वेब का नाम भी नहीं लिया, उसने कहा नॉलेज बेस है यार तुम्हारे पास, बहुत कुछ है,
और क्वेरी करो, वहाँ से तुम रिजल्ट लेकर आओ। रिजल्ट लेकिन देना नहीं है यूज़र को, ये रिजल्ट एलएलएम के पास जाएगा, और एलएलएम क्या करेगा, इसको फिर अच्छे से जमाएगा, लिखेगा, और फिर वो आपको आउटपुट देगा। तो रैग में रिट्रीवल सिस्टम है अपने पास, और फिर ये जनरेशन है, ये जनरेशन है, ये रिट्रीवल है। ठीक है। अब हमने देखा कई लोग रैग और ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है, कर रहे हैं, करो यार, कोई दिक्कत नहीं, एकदम टेंशन नहीं लेने का सारी बातों का कि इतना हो गया, इतना आगे बढ़ गया, सीख रहे हैं हम सारी चीज़ें, एकदम से तो नहीं। ठीक है। बेसिक्स हमें एलएलएम समझ में आ जाए, सारी बातें समझ में आ जाए, वी कैन प्रोसीड। ठीक है। बेसिक से ही आप कवर कर पाओगे बातें, यही कह रहा है वो। तो रैग में डायनामिक नॉलेज इंटीग्रेशन, वी आर हैविंग इनकॉर्पोरेट रियल टाइम इंफॉर्मेशन। रियल टाइम तो भैया वेब से मिलती है, इंटरनेट से, कई सोर्सेज हो सकते हैं। वी डू हैव डायनामिक सोर्सेज, तो अब लोग वो भी कर रहे हैं ना, पीडीएफ अपलोड कर दो, वहाँ से निकाल लो, कुछ और अपलोड कर लो डेटा, सोर्सेस लिंक दे दो, वहाँ से निकाल लो। ओके, कंटेक्स्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, वर्सिटैलिटी है। तो मैंने कल भी बोला था, चैट जीपीटी में आप उससे बोलो कि भाई तू वेब से निकाल, तो वेब से सर्च तो कर रहा है वो, अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा अभी। अब देखना रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है इतना, तो चैट जीपीटी के बाद जो पुराना नॉलेज है उस पर बहुत अच्छा बना के दे देगा वो, अभी वेब से अच्छा नहीं करके रिजल्ट दे पा रहा वो, कर सकता है। कल भी मैंने बोला था, यू आस्क चैट जीपीटी कि भाई मुझे करंट इंफॉर्मेशन दे दे, तो और उसको प्रॉम्प्ट में लिखना, ऐसे मत करना, मेंशन इन प्रॉम्प्ट कि काइंडली सर्च ऑन वेब हाउ मैनी कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड टिल 23 अक्टूबर, देना उसको, ये लिखना काइंडली सर्च ऑन वेब, फिर वो वेब से सर्च करेगा वो। आप देखना चाहते हो, चलो यार बता ही देता हूँ मैं, बोलोगे सर कहाँ लगे। ठीक है। इफ़ यू वांट टू सी, मैं आपको चैट जीपीटी बता दूँ। ओके, सो लेट मी शेयर माई एंटायर स्क्रीन। ओके, एंड देन फिर आपको मैं बताता हूँ रैग का क्या फंडा चल रहा है। ये रैग का क्या फंडा चल रहा है, ये चल रहा है कुछ, क्या लिखा मैंने, काइंडली, दिख रहा है ना आपको, चैट जीपीटी दिख रहा है ना, काइंडली सर्च ऑन वेब हाउ मैनी कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर मोदी visited till 23 अक्टूबर 2024। अब जीपीटी का तो खुद का डेटाबेस सितंबर 22 तक का कट ऑफ है इसका, उसके आगे एक पर ये ट्रेन नहीं हुआ है। लेकिन आप उससे पूछ रहे हो कि अक्टूबर 23 2024 तक हाउ मेनी कंट्रीज मिस्टर मोदी विजिटेड, इंटर मारता हूँ। ये बता रहा है, ये देखो, PM Modi has spanned across various regions the significant economic participation in key summits. Okay, which one is latest? Search on web. ये देखो, सही बात है। हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी ब्रिक्स समिट के लिए तो रशिया गए ना, कजान में हो रही है ब्रिक्स समिट, तो इसने बना दिया ना, सर्च ऑन 6 साइट्स, ये देखो। तो आप इसको ऐसा वैसा ना समझो, इसने मतलब ये रैग है, यही रैग है।
यानी नॉलेज बेस में से बहुत बड़े डेटा बेस में से ये इंफॉर्मेशन उठा के ला रहा है और फिर जनरेट कर रहा है। यही तो रैक था। रिट्रीवल, सो इट रिट्रीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फ्रॉम इंडिया टुडे, न्यूज़ एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, सबसे उठाई उसने। और उठाने के बाद इसने जनरेट कर दिया। ये तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है ना, इसका तो पता होना ही नहीं चाहिए था चैट जीपीटी को, लेकिन उसने क्या लगाया, रैक। गॉट इट। तो आप इस तरीके से अभी रैक का इस्तेमाल कर सकते हो चैट जीपीटी पर। इट विल सर्च ऑन द इंटरनेट एंड इट विल मेक अ कंटेंट फॉर यू। जो भी उसे मिल जाए, वो तो जितना पावरफुल रैक सिस्टम होगा उस हिसाब, अभी इतना मुझे इतना पावरफुल तो नहीं लगा, बट ठीक है, अभी छोटे मोटे काम के लिए तो मैं उससे जो पूछ रहा था तो उसने मुझे बता दिया कि ये ऐसे हो रही है कजान के अंदर, एंड ठीक है। अर्लियर इन अक्टूबर ही विजिटेड लाओस एंड वियतनाम, कुछ लिखा है यहाँ पर, वियतनाम होगा, ठीक है। ही ट्रेवल टू यूनाइटेड स्टेट्स इन ब्रुनई ऑल्सो, ठीक है। तो ये उसने बता दिया, ये लेटेस्ट में है। दिस इज रैट। उस अप्रोच को फॉलो करो, एंड दैट्स इट। हियर इट्स मेंशन, दैट्स व्हाट हियर इट्स मेंशन, ठीक है। सो चूजिंग बिटवीन फाइन ट्यूनिंग एंड द रैग, यदि हम बात करें तो नेचर ऑफ द टास्क, क्या करवाना है आपको। डेटा अवेलेबिलिटी, यदि डेटा नहीं है तो रैग का इस्तेमाल करो। रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं आपके पास, तो फाइन ट्यूनिंग तो भाई कंप्यूटेशनली इंटेंसिव हो जाएगी, भारी पड़ेगी, रैग का इस्तेमाल करो। अब रैग पे तो काम कर रहे हैं, फाइन ट्यूनिंग का कोई छिड़ नहीं रहा है अभी इतना ज़्यादा, रैक्स की बात कर रहे हैं, रैग पे ही कई धुरंधर काम कर रहे हैं। और देखता हूँ, आई डू सी लॉट ऑफ कंटेंट ऑन लिंक्डइन, रैग, ये आर्किटेक्चर, वेक्टर डेटाबेस, तो ये तो वो सब बता। कोई बात नहीं, थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे इसे आगे। आपको समझ में आया, आज की क्लास भी क्लियर हुई आपको, ये डायग्राम और ये मैंने प्रैक्टिकल करके बता दिया आपको। डिड यू गेट इट और नॉट? ठीक है, ऑल राइट, समझ में आया। ओके, लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग, लेट मी